New lesson, arithmetic progression. What is the arithmetic progression? So first one, start for the sequence. What is the sequence? Sequence हम मोस्टली क्या बोलते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नेचुरल नंबर. So we write the numbers 1, 2, 3, 4. These are the natural numbers. An order is given that, right? In this order we can tell the position of any numbers. Now for example, number 13 is at 13th position. The number 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 are also written in a particular order, right? 16, what is the square root? Is 4. This is the 4th position. Similarly, 25 is equal to 5 square, right? 25 square root is equal to 5. This is the 5th position. 49 square root, what is that? 7. This is the 7th position. So in this set of numbers, also place of each number is determined. Then after that sequence, what is the definition of sequence? A set of numbers are arranged in a definite order. Arranged in a definite order like the natural number is called a sequence. So there are the different type of the sequence is written as a particular position. Now A1, A2, A3, A4, these all are the sequence. And other one is F1, F2, F3, these are also is sequence, right? Some pattern is there. Now these are how many circle? 1 circle. Then how many circle? 3. Number of the circle is 3. Then pattern, see that first one 1, 2, 3, 4, 5. How many number of the circle? 5. Second one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. So how many number of the circle? It's 7. So different number is there, and now it's a representing by the sequence of the number, right? This is the order of the number, odd of the number, like 1, 3, 5, 7. Next one is 9, 11, 13, 15, 17. So these all are the odd number. So this one is also is sequence. Let's see next one. So next one, some triangle is there. See that pattern. How many triangles? 1, 2, 3, 4, 5. So number of the triangle is 5. Second one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many number of the triangle is? 8, right? Same as it is pattern is there. As it is different type of the numbers, right? Look at the patterns of the number. Try to find a rule to obtain the next number from its preceding number. These help us to write all the next number. अगर हमें मोस्टली नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना रहता है तो हम नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एग्जाम्पल, जैसे हम बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं तो आपको बीच के नंबर आइडेंटिफाई होते हैं. लेट्स सी, हम उसके बेसिस में भी बात करेंगे. सो फर्स्ट वन हियर A1, सी द नंबर फर्स्ट वन 2, 11, 6, 0, -6, 0, 5, -37, 8, 2, 61, right? So this is the first number, this is the second number, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9. So these all are the number is there, like this list of number is also a sequence, right? Is also a sequence. But in this case we cannot tell why a particular term is at a particularly position. Similarly, we cannot tell a definite relation between the consecutive terms, right? Consecutive terms हम नहीं बोल सकते हैं because there is some example is there. For example, 4, 8, 12, 16, right? Second one example 2, 4, 8, 2, 16 and 32. Third one is 1/5, 1/10, 1/15, 1/20. सो एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन है. सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना था और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड आउट करना था. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में एक सीक्वेंस दिया हुआ है, टर्म इन अ सीक्वेंस. सो फर्स्ट वन हम टर्म किसको बोलेंगे, देन इन अ सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंट होंगे. इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज. सो दिस ऑल आर द टर्म्स and represented order of the sequence. T1, T2, T3 and so on, Tn. Another number is there
in the general sequence is written as Tn. So if the sequence is infinite, right, undefined है जिसकी फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है. So positive integers and there is a term is Tn. These every integer is represented by n and term is represented by Tn. Activity 1 is given that some sequence are given below. Show the position of the terms. So by T1, T2, T3 हमें terms बताने हैं कौन कौन से पोजीशन है, तो हम उसके बेसिस में हम देखेंगे. Now first one activity, आपको term बताना है in the sequence order. तो first one it's a term 1, T1 is equal to 9. Second one it's term 2, 15. Third one is T3, 21, and last one is T4, 27. These all are the terms. Seventh one क्या आएंगे? First one T1 is equal to 7, T2 is equal to 7, T3 is equal to 7, T4 is equal to 7. These are also term. And now third one T1 is equal to minus 2, T2 is equal to minus 6, and T3 is equal to minus 10, and T4 is equal to minus 14. So these all are the term in the sequence. So next one हम activity देखेंगे. Activity second one, some sequence are given below. Check whether there is any rule among the terms. Find the similarity between two sequence. Similarity बताना है. Then to check the rules for the term of the sequence, look at the arrangement on the next page and fill in the empty boxes suitably. So first one, these all are the question is there in the activity based is there. So let's see. Now activity based में है. So let's find the relation in this sequence. Let's understand the throughout behind it. So first one हम differences find out करेंगे. So I'll written here. First one 1, 4, 7, 10. So आपको next two term find out करना है. So this is number ये दिया है. अब क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं है. तो first one हम आइडिया लगाएंगे, हम डिफरेंस देखेंगे, राइट. तो 1 के बाद 4 है, कितने का डिफरेंस है? 1, 2, 3, 4. इट मीन्स 3 का डिफरेंस है, राइट. आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 माइनस 1, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, सॉरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. देन 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3. अब नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एग्जाम्पल, राइट. सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, हमने प्लस किए, राइट. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10. तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. प्लस 3 करेंगे, 10 प्लस 3 13. देन अगेन प्लस 3 करेंगे, 13 प्लस 3 आइए आपके आ जाएंगे 16, राइट. हमने एज इट इज सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लिए. अब सेम एज इट इज हम सेकेंड वन एग्जाम्पल देखेंगे. तो हम सेकेंड वन एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट. सेकेंड टर्म क्या है हमारे 12, देन माइनस 6, क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे. इट में 6 के डिफरेंस है. या आपके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, या तो पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, या कांस्टेंट होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए. तीनों में से कोई एक होना चाहिए. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड लास्ट वन इज जीरो होना चाहिए. तीनों में से कोई एक कांस्टेंट आना ही चाहिए. अगर कांस्टेंट नहीं आएंगे इट मीन्स आपकी ये जो सीक्वेंस ऑर्डर है ये रॉन्ग है. 18 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 6 आएंगे. 24 माइनस 18 करेंगे देन 6 आ जाएंगे. अब नेक्स्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट वन के एग्जाम्पल में अप्लाई किए थे. सो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएंगे. देन अगेन हम प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3, 30 आ जाएंगे. देन अगेन हम प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे. ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट टू टर्म. थर्ड वन देखो, थर्ड वन डिफरेंस क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे. अगेन डिफरेंस 0, अगेन डिफरेंस 0 आ जाएंगे. तो कभी आप देख रहे हैं इसमें 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आएंगे, राइट. 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आएंगे. 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आएंगे.
अगेन 3 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएंगे, 3 आएंगे। सेम अगर 0 प्लस 3 करेंगे, सॉरी हाँ 3 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएंगे, 3 आएंगे, राइट। एज इट इज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ वन देखेंगे। सो फोर्थ वन सेम हम डिफरेंस देखेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म इज 16 एंड फर्स्ट टर्म इज 4। क्या आएंगे, 6 देन -4 इज इक्वल टू 2 एंड 1, राइट। तो फर्स्ट वन में आपके डिफरेंस आ जाएंगे 12, सेकेंड में डिफरेंस क्या आ जाएंगे बताइए आप लोग। अगेन 12 आएंगे, राइट। 12 आएंगे, देखो 12 आएंगे क्या, नहीं आएंगे। ऐड करके देख लो, 6 + 2 8 हो जाएंगे, 16 देन +2 इज इक्वल टू 8, देन 1 + 1 2, 28 आ जाएंगे। तो क्या आपके नेक्स्ट टर्म 28 है, नहीं है, राइट। ये देखिए, इसमें हम एक पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न हमारे जैसे 4 1 ज़ा 4 होएगा, राइट। 4 1 ज़ा 4, देन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या आएगा, 64 होएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर 4 का रेज टू 4 अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट में अगर 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 देन कैरी 1, देन 24 24 + 1 25, तो 256 आ जाएंगे नेक्स्ट टर्म। अगेन 4:5 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, इसमें 4 का फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 ज़ा 24 देन 2, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22 देन 2, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, 1024 आएंगे, 1024 आएंगे। अगेन अगर 4 आप 6 करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएंगे, एज इट इज़ आएंगे। 4:6 करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएंगे। अब लास्ट वन हम एक्टिविटी देख लेते हैं। अगर आप डिफरेंसेस करते हो, राइट, तो फर्स्ट वन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस है, आपके डबल माइनस आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -105, सॉरी 1.5, माइनस माइनस इज प्लस। अगेन डिफरेंसेस निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, देन माइनस माइनस +1 हो जाएंगे, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपके 1.5 देन 1 एंड 0, सॉरी -1.5 है, -1.5 देन अपॉन +1, राइट, +1, सो 5 एज इट इज़ आएंगे, देन 1 + 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, राइट। बिगर नंबर इज 1, सॉरी। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। -1 देन प्लस -0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 1.5 आ जाएंगे। सेम अगर इधर -0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, सेम 2 आ जाएंगे। अगेन 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, -2.5 आ जाएंगे। अगेन 0.5 ऐड करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, 3, देन 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपके -3.5 आ जाएंगे, राइट। ये आपके सीक्वेंस आ जाएंगे। इजी है बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए हैं। सेकेंड वन हम देखेंगे डेफिनेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। So in this sequence, the next term is obtained by multiplying the previous term by a particularly number. This type of the sequence is called a geometrical progression. Second one is arithmetic progression. What is the arithmetic progression? So there is a 3 term 100, 70, 40, 10 and -7, 4, -4, -1 and 2. Activity based question is there. तो हम इसके बेसिस में हम नेक्स्ट देखेंगे। तो हमने नेक्स्ट वन देखे, इन दिस गिवन सीक्वेंस ऑब्जर्व हाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन। सो नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। 70 अब -100 करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, -30 आ जाएंगे। 40 - 70 करेंगे तो -30, 10 - 40 करेंगे तो -30। अब नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है, हम इजी मेथड से करेंगे। देखिए 40
देन हमने क्या किए 40 देन -30 किए, राइट। 40 -30 आपके कांस्टेंट है, राइट। मैंने बताई थी आपके माइनस में नेगेटिव नंबर आने चाहिए और पॉजिटिव में नंबर आने चाहिए और जीरो में आना चाहिए, बट वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपके कांस्टेंट नंबर है, राइट। कांस्टेंट इट मीन्स एक सिमिलर नंबर आना चाहिए। तो 40 देन -30 करेंगे तो 10 आएंगे, अगेन -30 करेंगे तो -20 आएंगे, अगेन -30 करेंगे तो -50 आएंगे। इजी है। सेकेंड वन हम देखेंगे -7 -4 -1 2 5 8, राइट। तो हम डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्ट वन डिफरेंस देखेंगे -4 देन +7, राइट। डिफरेंसेस कितना है -3, राइट, -4 एंड +7, -4 देन +7, +3 का डिफरेंस है। सेम इसमें भी +3 का डिफरेंस है, अगेन +3 देन +3 है। तो नेक्स्ट वन अगर आप +3 करेंगे तो +3 5 हो जाएंगे, अगेन +3 करेंगे तो 8 आ जाएंगे। ये आपके डिफरेंसेस नेक्स्ट कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अब यहाँ तो सेम नंबर दिए, अब क्या करेंगे डिफरेंसेस चेक करेंगे। क्या डिफरेंस है 0, अगेन डिफरेंस 0, अगेन डिफरेंस 0, तो आपके 0 0 डिफरेंसेस गिवन है, राइट। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्जुगेटिव टर्म्स एंड जनरल फॉर्मूला, देन कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।